सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आपको इससे डिराइव यूनिट का एक इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे देना चाहूँगा मैं कि डिराइव यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट के कम्बिनेशन से बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ कि डिराइव यूनिट में एक सिंपल सा स्पीड की बात कर लूँ मैं, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स मीटर लेंथ एंड द टाइम, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। लेंथ और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये डिराइव्ड यूनिट है। सिमिलरली इफ यू गो थ्रू द एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर लूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगर फोर्स की बात कर लेते हो आप तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज F इक्वल टू ma, मास, दिस वन इज मास and acceleration is meter per second square, m into a. These all are the derived unit. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, we are going through the one by one, we have moved through, but before this one we are going to discuss with some terms related to your dimensions. What is dimension and how to relate this one from your physical quantity fundamental units. You know, all derived physical quantities can be expressed using the 7 base quantities as discussed in the beginning of the chapter. Hence, these quantities are also referred as 7-dimensional physical world. They are represented by using square bracket. Yes, you can use it in square bracket, and thus the 7 dimensions of physical world are represented are as follows. I am writing the all 7 dimensions of physical world. 7 dimensions of physical world are represented as follows. For mass, you can write here capital M in square bracket, this one for mass. And for length, L, capital L in square bracket, this one for length. And capital T is for time. A, capital A, yes, this is for electric current. And K, this one is capital K, which is for thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature. And small c as well as small d along with it represented as luminous intensity. And the mole, MOL, all word in small letter. And this one is for amount of substance. Amount of substance. You know, the dependence of all the physical quantities on these base quantities can be expressed in terms of their dimensions. I am writing here the dependence of all other physical quantities
physical quantities. On these base quantities, can be expressed in terms of their dimensions. ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसकी भी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया भी था आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो जैसे मैंने पहले ही आपसे बात की है, मैं यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन दोनों को साथ में लेके काम करूँगा ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आप डायमेंशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो इसको पहले आप नोट कर लो, और अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्पीड के लिए आप सेलेक्ट करते हो स्पीड फॉर v, and v is equal to distance upon time. You know well, distance upon time, and distance upon time, then distance is represented as L. Length की बात हो रही है, distance में length की बात हो रही है in square bracket, and time for capital T, this one also in square bracket, and you can write like this one, L T inverse 1 is the dimension of speed. ठीक है, now how can we define the dimensions at first, because I already studied all these things कि we are represented mass in terms of m, length in L, but in short terms आप ये सबसे पहली बात ये आती है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो लेट्स गो फॉर फर्स्ट डेफिनेशन कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं, उसकी बात करता हूँ मैं। फिजिकल द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मैं डायमेंशंस की डेफिनेशन यहाँ पे कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे उसको लिखा जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity are the powers. Powers means और एक्सपोनेंट, पावर बोला जाए या फिर एक्सपोनेंट बोला जाए, एक्सपोनेंट्स to which the base quantities are raised to represent that quantity, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, समझ लेते हैं इस बात को कि डायमेंशंस ऑफ, आपने क्या देखा, मैंने देखा डायमेंशंस किसकी, L t-1, किसकी डायमेंशन थी, ये स्पीड की डायमेंशन थी। तो दिस वन डू नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड और स्पीड और द यूनिट इन विच it is expressed. Can you tell about anything कि अगर आपको सिर्फ L t-1 दिख रहा है तो आप इसके बारे में इसके मैग्नीट्यूड को बता सकते हो क्या, कि मतलब मैग्नीट्यूड इन द सेंस, मेरी बात को समझना आप। अगर आपको ये स्पीड दिख रही है, आपने बोला कि v जो है स्पीड है और स्पीड की जो डायमेंशन है वो ये है, तो मैं पूछूंगी कि ये कितना है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, हाँ
70 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर, क्या है ये? तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। 20, 50, 70, 100, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो कैन यू टेल अबाउट कि अगर आप सिर्फ LT-1 देखते हो तो आप मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकते हो क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैग्नीट्यूड नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और द यूनिट इन विच इट एक्सप्रेस, किसकी यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया गया है, अभी इसको देख के बताना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ऐसे 2-3 टर्म्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर आप स्पीड बोल रहे हो तो मैं अगर इसको वेलोसिटी बोलूँ तो क्या दिक्कत है? मैं बोलूँगा कि नहीं ये स्पीड की यूनिट नहीं है, वेलोसिटी की यूनिट है, तो भी इसके बारे में भी प्रॉब्लम है। तो ये एक तरह का एक सा ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये क्या बताता है? ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट मेयरली टेल्स अस how the speed of an object varies with variation. How the speed of an object varies with a variation in length and time. Variation in length and time. Okay? We say the speed of an object has one dimensions in length. अब यहाँ पे आप इसको कैसे समझ रहे हो आप, इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि आप कैसे समझना है आपको, ये सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप इसके बारे में क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो इसके बारे में? ये देखो मैंने एरो मार्क लगा दिया है और इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि ये क्या क्या बता रहा है। तो वी से the speed of an object has one dimension in length. देखिए लेंथ की डायमेंशन क्या है? 1 है, क्योंकि L पे पावर क्या है? 1 है, तो 1 डायमेंशन इन लेंथ हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। -1 डायमेंशन किसके लिए है? तो इन टाइम, -1 डायमेंशन इन टाइम, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम में देखोगे, टाइम में -1 है, इन टाइम, राइट। तो ये दोनों चीज आपने देख ली। सिंस द स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड कोई मास पे डिपेंड करता है क्या? तो मास पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, नोट में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, है ना, मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या है? तो इसकी डायमेंशन आप क्या लिखोगे? m पे पावर 0। तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसकी डायमेंशन 0 हो गई। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, m पे पावर 0 L t पे पावर -1, ये भी तो लिखा जा सकता है इसको। तो ये एक तरह का डायमेंशनल मेथड है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात की गई है। क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
in terms of its dimensions, is called its dimension formula. It's called its dimensional formula. अब इसकी एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, फॉर एग्जाम्पल कैसे एक डायमेंशनल फार्मूला के बारे में आप बता सकते हो, तो आपको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला के बारे में कैसे बताया जाए। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि एग्जाम्पल लेके हम लोग एक देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे फार्मूला फोर्स की ले लेते हैं, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो मैं जैसे मैंने बताया था कि मैं यूनिट से भी लेता हूँ, यूनिट से काम करेंगे। यूनिट फोर्स की का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए आप क्या लिखोगे, केजी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ले लिया हमने। अब इसमें जो है, जी हाँ, बता दिया है कि ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका डायमेंशन जो होगा, केजी के लिए डायमेंशन m लोगे, ये मीटर है, इसके लिए लेंथ लोगे, और टाइम के लिए -2। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हो गई। और अगर ये डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हो गया, और अगर एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लें, तो डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए आपको चाहिए, जैसा मैंने बताया, फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, तो एक्सेलरेशन के लिए आप देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मैं इसकी यूनिट के साथ ही बात करूंगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है इस वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में होती है, अपॉन टाइम सेकेंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। और डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो डायमेंशन ऐसा हो जाएगा m पे पावर 0 l t पे पावर -2 का, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। उसी तरह से अगर डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी की चाहिए, तो यहाँ पे उसके बारे में भी बता देता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। फार्मूला जो होता है, फार्मूला के साथ निकालते हैं हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो गया केजी में, और वॉल्यूम कितना हो गया, मीटर क्यूब में। तो ये यूनिट हो गई, केजी पर मीटर क्यूब जो है इसका यूनिट हो गया, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे m l -3 ऐसा लिख सकते हो, और अगर t लिखना चाहते हो तो t पे पावर 0 लिख दो, क्योंकि उस पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है। तो ये इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा डेंसिटी का। अब मैं एक एक करके सबकी डायमेंशन और उसके डायमेंशन फार्मूला पे मैं बात करता जाऊँगा, इसको नोट कर ले। पहले जैसे मैंने पहले ले लिया आपके सामने एरिया। एरिया क्या है, एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक डिराइव यूनिट में आएगा, जिसमें लेंथ इंटू वेट आप लोगे तो मास, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में L इंटू बी इंटू एच है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू सबको मीटर में मेजर किया जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी डायमेंशन L3 भी, डायरेक्ट आप सिर्फ L3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन अगर इसको प्रॉपर डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप, तो M0 L3 T पे पावर 0 ले सकते हो। डेंसिटी का बात है, तो डेंसिटी में भी आप मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी तो केजी पर मीटर क्यूब। M देखो मास है, केजी के लिए आपने M यूज़ किया है, और मीटर क्यूब मतलब L क्यूब, और टाइम तो है नहीं इसलिए यहाँ पे T पे पावर 0 ले लिया। उसी तरह से स्पीड के लिए आपने देख लिया, वेलोसिटी के लिए भी देख लिया, दोनों के लिए सेम आ गया। ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें कि आपने एक तरह से यूनिट और डायमेंशन दोनों को मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। यहाँ पे बाय मिसप्रिंट ये यहाँ पे M L -3 होगा, T 0 होगा, ठीक है, वो रिटन में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी वहाँ। ये एक्सेलरेशन के लिए मैं ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, तो अभी मैंने देखा भी था, वेलोसिटी अपॉन टाइम था। तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला हो गया, तो इसकी यूनिट कितनी होगी,
तो यूनिट वही हो जाएगी। यूनिट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे मीटर पर सेकेंड अपॉन पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब यूनिट के साथ अगर आप इसको डायमेंशन भी लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, मास तो है नहीं तो m पे पावर 0 लिख दो, l है, l लिख दिया, t-2, क्लियर है। ये इसकी डायमेंशन भी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं सिस्टमेटिक अगर चलूँ तो मैं फोर्स की भी बात कर लेता हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो यूनिट हो गई। इसके बाद इसके अलावा भी इसको न्यूटन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना, आपको तो पता ही है, इसको न्यूटन से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो ये हो गया एम एल, केजी के लिए एम ले लो, मीटर के लिए एल ले लो, और ये t-2, तो एम एल t-2 ये फोर्स के लिए हो गया। उसी तरह से अगर मैं दूसरी तरफ वर्क डन के लिए बात करूं, क्योंकि वर्क डन के लिए भी पूछा जाता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए आप क्या लोगे, तो फोर्स के लिए आप ये अभी यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, एक तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। दूसरा फोर्स के लिए अगर आप लिखोगे यूनिट देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा लिखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखोगे मीटर, तो पता है ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई। अब इसकी डायमेंशन देखोगे तो ये हो जाएगा ml2t-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वर्क डन का डायमेंशन हो गया। उसी तरह से वर्क डन का डायमेंशन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, इसी तरह का सेम टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर ऐसे लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का तो आप देखा अभी आपने क्या था, अगर इसको भी न्यूटन मीटर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी इसको न्यूटन मीटर बोल सकते हो आप, जैसे इसमें लिखा है ऊपर वाले में। तो नीचे वाला भी सेम आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ओवरऑल ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा मैं ऊपर मैंने किया था वैसा ही सेम नीचे भी आ जाएगा ml2t-2। इसका मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक वर्क डन है, एक टॉर्क है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, लेकिन दोनों की डायमेंशन कितनी है, सेम है। यूनिट कैसी है, सेम है। इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, नेम टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। तो यहाँ पे ऐसा आप यहाँ पे इस तरह का भी बना सकते हो। तो आज मैं क्लास यहाँ पे ओवर करता हूँ, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।